तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि रिग्रेशन लाइंस को यूज करते हुए हम ना नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करते हुए कैसे हम रिग्रेशन लाइंस क्रिएट कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं, so by using the normal equations. So here the first method we have completed through the normal equations. Now the second method is the through regression coefficient. So in the regression coefficient we can calculate the regression coefficient by using the two methods, like the deviation method from arithmetic mean and another is the deviation method from assume mean. So here you can see in that we can use the least square method. So these all comes under the least square method. So the regression equation normal x on y, the x is equal to a plus by, where the x is the dependent and y is the independent variable, and here the y is equal to a plus bx. This is the y on x. So here we can see the y is the dependent variable is depend on the x. So, and value of the a and b in the above equation found by the method of the least square reference. So we can use the value of a, we can find the value of a and b by using the least square method. So these are the two normal equations. So these values of a and b are found with the help of the normal equations. So normal equations का हम यूज कर चुके ये हमारा x on y है और ये हमारी इक्वेशंस है, ये y ऑन x है. y ऑन x मीन्स y के फैक्टर इधर है, x के फैक्टर इधर है. ठीक है, इस तरह x ऑन y है, x इधर है और y इधर है, इसलिए x ऑन y शॉर्टकट तरीका बताओ याद करने का, y इक्वल टू x. सो ये हमने नॉर्मल इक्वेशन वाला हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हम एग्जांपल्स के साथ भी इसको कर चुके हैं. अब हमारा था रिग्रेशन कोफिशिएंट. सो रिग्रेशन कोफिशिएंट दो है रिग्रेशन कोफिशिएंट. एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हम बी से डिनोट करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट को, बी एक्स वाई. रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, इट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स. तो वाई ऑन एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिनोट करेंगे बी वाई एक्स. देयर आर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट, वी आर डिनोटिंग विद द डिनोटेड ऑल दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट बाय बी एक्स वाई और बी वाई एक्स. So regression equations y x on y. So we can just make the regression equation like that. X minus x bar is equal to bxy and y minus y bar. And regression equation y on x y के फैक्टर हम इधर रखेंगे, x के इधर y on x. शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ याद करने का, x से x minus x bar and x and y. इधर अगर y on x है तो regression coefficient y on x आएगा. So these are the two regression equations. So we will solve and find out the value of bxy and byx and put all the values in that regression equation. Okay, so how you can calculate it? Just let's start. So first of all, there is a first method how we can solve by using the arithmetic mean, by using the deviation from the deviation from actual mean. So here the x is equal to x minus x bar and small y is equal to y minus y bar. ठीक है, so it is denoted by that. So we can find the bxy y x on y, तो y का जो फैक्टर नीचे होगा and byx तो x का नीचे. So this is the shortcut way to remember the formulas. So we can use this formula. So here you can find you can see that the value of x and y given. So first of all we will calculate the x bar, then y bar, then we will take the deviation. X bar 24 divided by 5, 24 divided by 5, so x bar is equal to 4.8. Same we can also calculate the y bar, summation y divided by n. So summation y is equal to 29 and total number of observations is the 5. 29 divided by 5, so it will be 3.8. So you can take the so हमारा क्या आया था 4.8 आया था. x बार है हमारा, x बार कितना आया था हमारा 4.8 जो मीन, एंड y average of 5 was 3.8. So we can take the deviation from 4.0 for all values and y bar is 3.8. So we can take the deviation of the mean value from each and every values of the x. 3 minus 4.8 minus 1.8, 2 minus 4.8 minus 2.8, 7 minus 4.8 2.2, like that.
and same here we can take the deviation from y minus y bar. 6 minus 3.8 0.8. Then y minus y bar was 6 minus, that was the 4.8, 3 minus, the total will be the 29 divided by 5. It will be 5.8. Sorry, it will be 5.8. The y bar will be 5.8. So it will be 6 minus 5.8 0.2, 1 minus 5.8 minus 4.8, 8 minus 5.8 2.2. So we take the deviation. After taking the deviation, we make the square of all the values, then square of y, then multiply x and y. So after multiply x and y, we have to put the value here. We calculate the y square, x square and the summation x y. बस ये तीन चीज ही हमें चाहिए मेन तो, एंड उसके बाद x बार और y बार भी चाहिए हमें to put the values in the equations. So here you can see that we already calculated summation xy is equal to, it is the x on y. First of all, we try to find out the x on y. So bxy, first of all you can calculate the values of that before going to the bxy and directly to the no equations. So firstly we can solve like that. So summation y square was the 38.8. So it was bxy 0.74. Now we can put the value in the equation. Equation was the x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. So put the values here. तो x minus x bar क्या था हमारा 4.8 था, bxy की वैल्यू हमारी क्या आई 0.74 एंड y माइनस y बार कितना आया था हमारा 5.8. ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे. एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई. ठीक है, एंड इसी तरह रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो y ऑन x निकालोगे तो ये y(x), तो समेशन xy की क्या होती वैल्यू थी 28.8 डिवाइड बाई 26.8, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 1.07. सो ये हमारी इक्वेशन में पुट कर देंगे. x ऑन y ऑन x की क्या थी इक्वेशन, y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) एंड x माइनस x बार. बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. y माइनस y बार कितना था 5.8 एंड 1.07 हमारी by(x) की वैल्यू आ गई. x माइनस x बार की वैल्यू 4.8 थी. तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई. तो दो इक्वेशन हमारी जो नॉर्मल रिग्रेशन लाइंस हमारी बन गई हैं, या इक्वेशन कह सकते हो. इस इक्वेशन में हम अगर वैल्यू y की वैल्यू दे रखी हो तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ y, गिवन वैल्यू ऑफ y, वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ x. हियर इन दिस ऑन द गिवन वैल्यू ऑफ द x वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y. अगर x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू यहाँ पुट करके हम y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ one unknown variable y given value of one known variable. सो ऐसे हम सोल्व करेंगे. ये तो था हम टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, कि एक्चुअल मीन से हम डेविएशन लेके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को. दूसरा मेथड हमारे पास है कि डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. एज्यूम मीन से लोगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा कि एंड समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx इंटू डी वाई, वे dx क्या है हमारे पास यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, एंड dy क्या आएगा हमारे पास, dy क्या है हमारे पास y माइनस ए डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. तो dx माइनस समेशन dx इंटू डी वाई, और नीचे हमारे पास y के फैक्टर आएंगे. समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस समझो. ये समेशन dy स्क्वायर है एंड ये समेशन dy का होल स्क्वायर है. तो दोनों की वैल्यू, यहाँ पे समेशन dy की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे समेशन dy स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे. तो इसी तरह by(x) है, यहाँ पे y की जगह है, ये y की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा. तो ये हम फॉर्मूला में हम पुट करके हम सोल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू दे रखी है. तो हमने dx में एज्यूम मीन क्या मान लिया, हमने 7 को एज्यूम मीन मान लिया, और इसमें हमने किसको मान लिया 6 को हमने
एज्यूम मीन मान लिया, इसमें 6 को हमने एज्यूम मीन मान लिया। तो आप डेविएशन ले सकते हो एज्यूम मीन से dx को x माइनस 7, तो 7 माना था हमने, 3 माइनस 7 माइनस 4, 2 माइनस 7 माइनस 5, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 7 माइनस 3, 8 माइनस 7 1। इसी तरह इसमें डेविएशन ले लो, 6 माइनस 6 आपका 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 9 माइनस 6 3। ठीक है, तो डी एक्स स्क्र डी का इनका स्क्र कर दो सबका, इसी तरह इसका स्क्र कर दो यहाँ पे, तो डी एक्स स्क्र आ गया हमारे पास, डी वाई स्क्र आ गया। अब डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई कर दो इनका, माइनस 4 इंटू 0 0, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 25, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 प्लस 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3। तो टोटल करेंगे डी समेशन डी एक्स एंड डी वाई का 31 आ गया, ये 39, ये माइनस 1 एंड 51, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। अब हमें एक्स बार और वाई बार भी चाहिए, जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स बार निकाल सकते हो आप यहाँ पे। समेशन एक्स कितना है 24, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो 24 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया हमारे पास 4.8 आ गया। और इसी तरह वाई बार निकाल लो, वाई बार समेशन वाई कितना है हमारे पास टोटल 29, तो 29 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा 5.8। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, वो सेम एग्जांपल ही है मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई, एन क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 था, समेशन डी एक्स एंड डी वाई की वैल्यू हमारे पास 31, माइनस ये हमारे वाई एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं। फिर समेशन डी एक्स की थी हमारे पास वैल्यू माइनस 11, समेशन डी वाई की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 1, मल्टीप्लाई 5 इंटू समेशन डी वाई स्क्र, समेशन डी वाई स्क्र कितना था 39 था, एन कितना हमारे पास 5 है, माइनस समेशन डी वाई माइनस 1 का होल स्क्र हम कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो बी एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी हमारी 0.74 आएगी। ठीक है, और इसको फिर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स बार क्या था हमारा 4.8, बी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से 0.74 हमने निकाल ली, वाई माइनस वाई बार क्या था हमारा मीन माइनस 5.8, तो वही इक्वेशन यहाँ पे एक बन जाएगी। फॉर्मूला आपको ये यूज करना है बी एक्स वाई के लिए, और बी वाई एक्स के लिए यहाँ पे y की जगह x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी वाई एक्स 1.07 आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो इसमें इक्वेशन में, तो ये हमारी तो ये हमारे पास ऐसे वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्चुअल वैल्यू यूज करनी हो तो आपने एक तो देखो बाय यूजिंग द एक्चुअल मीन, by using the deviation from actual mean। सेकेंड हमारे पास मेथड है by taking the deviation from assumed mean method। अगर मैं कहूँ कि by using the actual values of x and y की एक्चुअल वैल्यूज अगर यूज करोगे आप, तो उसमें एक्चुअल वैल्यू यूज करोगे तो सॉरी 5 एंड यहाँ पे यू कैन राइट द 4 बाय यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज। तो एक्चुअल वैल्यू यूज करोगे तो इसमें फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, अगर बी वाई एक्स निकालना है आपको, बी एक्स वाई निकालना है, तो इसमें एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, देन एन इंटू समेशन वाई स्क्र माइनस समेशन वाई का होल स्क्र। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे अगर एक्चुअल वैल्यूज आप यूज करते हो बी वाई एक्स। और बी एक्स वाई के लिए यूज करोगे आप सेम ऊपर वाला सेम बी एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाई एन इंटू समेशन एक्स स्क्र माइनस समेशन एक्स का होल स्क्र। ये तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो समेशन एक्स की, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 8
15 एंड y की समीशन y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। दोनों की हमारे पास 15 वैल्यू आई। तो अब इसका एवरेज कितना आ जाएगा, एक्स बार समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। टोटल नंबर ऑफ 5 है ना, तो 3 आ गया। वाई की भी जो आएगा मीन वैल्यू 3 आ गई। दोनों की कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे हमें डेविएशन तो लेना नहीं, क्योंकि बाई यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दिस मेथड इज बाई यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ, ये थर्ड मेथड बता रहा हूँ रेग्रेशन कोफिशिएंट का, ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स यहाँ पे कर लो, एक्स स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पे वाई स्क्वायर निकाल लो एंड एक्स वाई निकाल लो। बस सिंपल है। एक्स का स्क्वायर कर दो 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 16। इसका स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16 एंड 25। इनका स्क्वायर करोगे तो समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लो और समेशन वाई स्क्वायर निकाल लो। एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये आ गया 55, ये भी 55, दोनों 55 आ गया। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 5, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 5 20। समेशन एक्स वाई कितना आ गया, 45, 45। So simply you have to put all the values here into n into समय b y b एक्स वाई निकालेंगे तो n इंटू n कितना हमारे पास 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई समेशन एक्स वाई 45 आ गया, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। समेशन एक्स कितना था 15 एंड समेशन वाई भी हमारे पास 15 था। फिर n इंटू समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर कितना था 55 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। समेशन वाई कितना 15, 15 का होल स्क्वायर। तो ये 225 आ गया, 45 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस ये भी 225 आ गया, 275, 55 5 मल्टीप्लाई 5 275 माइनस 225। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, बी एक्स वाई है, तो इसका जीरो आएगा। बी एक्स वाई का क्या आ गया हमारा, जीरो डिवाइड बाई कुछ भी करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो बी एक्स वाई जीरो आ गया। इसी तरह हम ये पुट कर देना वैल्यू में, तो कोई जीरो का मतलब देयर इज नो कोरिलेशन। अगर आप उसमें निकालोगे, पुट करोगे इक्वेशन के अंदर, तो इसकी जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो जीरो वैल्यू होने के कारण आप का जो भी आएगी इक्वेशन बनेगी तो फिजिबल नहीं बनेगी और हमारा कोरिलेशन जीरो ना, रिग्रेशन जीरो हो जाए। कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, आप ये डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसमें देख लो ये आएगा, इसमें बी एक्स वाई का आया तो बी एक्स वाई का कितना आ गया हमारे पास, जीरो। तो इसमें पुट करोगे आप इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन थी क्या थी हमारी, ये वाली इक्वेशन थी बी एक्स वाई की। बी एक्स वाई की थी हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो इसमें पुट करोगे वैल्यू, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3 इज इक्वल टू बी एक्स वाई की कितनी आएगी 0, वाई माइनस वाई बार की कितनी आ गई थी वैल्यू, वाई बार कितना था हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 था। ठीक है, तो x माइनस 3
अभी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 हो जाएगा सब कुछ 0। तो सीधा ही x-3 है, ये x इक्वल टू 3 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो ये इंडिपेंडेंट होगा ईच अदर, तो कोई इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई इक्वेशन नहीं बनेगी अगर इस केस में। बट फॉर्मूला हम दोनों में ये यूज करेंगे। ये तो मैंने इमेजरी फिगर लिए थे, तो आप अगर फिगर सही से लेते हो तो आपकी वैल्यूज भी जीरो की बजाय, अगर जीरो आता तो कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे दोनों में। इफ वी आर यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। तो ये तीनों मेथड से हम 1 बाय 1 सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने तीनों मेथड रिग्रेशन कोफिशिएंट के करवा दिए, एक्चुअल मीन मेथड, एंड सेकंड था हमारा बाय यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड है ये बाय यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऐसे यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे।